یہ ہے محکمہ موسمیات کا ہیڈ آفس۔ بارش کی پیشگوئی ہو یا زلزلہ آنے کا خدشہ یا کوئی بھی وائرس آنے کا اندیشہ، محکمہ موسمیات کس طرح سب پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، اس کا سسٹم کتنا جدید اور مؤثر ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے، اسلام آباد میں موجود ہوں محکمہ موسمیات کے ہیڈ کوارٹر میں۔ کیا جدت لائی ہے محکمہ موسمیات والوں نے، اور بارش کب تک ایکسپیکٹڈ ہے ملک میں؟ جو اس وقت ہے خشک سالی ہے، وائرس ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جب ہمیں ٹی وی پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بارش کب تک متوقع ہے، سیلاب آ سکتا ہے، زلزلہ آنے کا خدشہ ہے، آج میں اس وجہ سے آیا ہوں محکمہ موسمیات کے ہیڈ کوارٹر۔ آپ کو یہاں کے جو مختلف انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹرز ہیں ان سے بات چیت کرواتے ہیں، اور یہ کیسے میئرمنٹ ہو جاتی ہے، کیسے یہ فورکاسٹ ہو جاتی ہے، آپ کو بات چیت کرواتے ہیں۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات ماہر صاحبزاد خان سر۔ بہت بہت شکریہ سر۔ بتائیے گا کیا جدت لا رہے ہیں آپ محکمہ موسمیات کے اس پورے انسٹیٹیوشن میں پاکستان میں جو ہے؟ بس جی کوشش ہے کہ جی ہمارے جو پہلے جس طرح کی فورکاسٹ تو خیر پہلے بھی ہم کنونشنل وے سے دیتے ہیں، اب بھی اس کو تھوڑا سا ڈیجیٹلائز یا اس طرح کے چیزیں کر کے ہم اس کو بہتر بنا رہے ہیں، اور ہو بھی گئی ہیں۔ تو فردر بھی اس میں ہم کچھ چیزیں ایسی نئے ریڈار، آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز، لائٹننگ ڈیٹیکٹر، سسمک کا نیا سیٹ اپ، اور اس طرح کی چیزیں ہم کافی لا کے ہم جو ہے وہ اس کی پہلے اگر ہم اپنا ڈیوریشن ہمارا زیادہ ہوتا تھا، تو اب ہم اس کی 5 منٹ کی جو ہے وہ فورکاسٹ یا اس کا وہ جو ہے نا ریڈنگ وہ لے کے تو ہم فورکاسٹ کو اچھے طریقے سے دے سکیں گے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہماری فورکاسٹ جو ہے وہ تقریباً ڈویژن لیول یا اس تک ہوتی تھی، تو اب ہم انشاءاللہ جب ہمارا یہ سسٹم نیا آ جائے گا تو ہم تحصیل لیول تک جائیں گے، ایک لوکیشن جو ہے ہمارے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بارش ہونی ہو یا سپوز فلڈ آنا ہو یا اس کے علاوہ ارتھ کویک آنا ہو، کیسے پتہ چل جاتا ہے، اور کتنا ٹائم پہلے آپ بتا سکتے ہیں کہ حفاظتی اقدامات کیے جائیں؟ دیکھیں یہ زلزلے ہیں، ان کی تو فورکاسٹ نہیں دی جا سکتی، یعنی آپ ایگزیکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس وقت زلزلہ آئے گا، لیکن اسٹیٹسٹیکلی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جس لوکیشن پہ کتنے سال کے بعد دوبارہ ایکٹیویٹی اور کس نوعیت کی ہے، تو اس حد تک تو اس کو کیا جا سکتا ہے، یا وہ ہمارے پاس ایک سسمک زوننگ میپ ہیں کہ ہمیں کس علاقے میں کتنی شدت کا زلزلہ ملتا ہے، اور اس کے ریٹرن پیریڈ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ اس علاقے میں کب ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے۔ وہ کنفرم ہوتا ہے یا ایک پریڈکشن ہوتی ہے؟ وہ ایک پریڈکشن ہوتی ہے، کنفرم ایکچوئل تو نہیں، وہ 2-4 دن یا اس طرح آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن زلزلے کی اس طرح کی اب تھوڑی سی یہ جو ہے نا ترقی آپ کہہ لیں کہ اس کی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ ہمارے پاس اتنا ڈیٹا آ گیا کہ ہم ریٹرن پیریڈ اس کا بتا سکتے ہیں۔ ابھی بارش نہیں ہو رہی ملک میں، اور ایک خشک موسم ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، کب تک کیا فورکاسٹ بتا رہا ہے آپ کا، کب تک ایکسپیکٹڈ ہے بارش ہونے سے؟ اچھا میں پہلے تو آپ کے پہلے سوال کی طرف ہی جاتا ہوں کہ آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ جی فلڈ فورکاسٹنگ اور عام موسم کی فورکاسٹ۔ عام فورکاسٹ جو ہے وہ ہم ریئل ٹائم ڈیٹا کی بیسس پہ 5 دن کی ہماری فورکاسٹ بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر اگر جائیں تو وہ ماڈل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جو گلوبل سرکولیشن ہو رہی ہے ان کو دیکھ کے بتایا جاتا ہے، تو 5 دن کی فورکاسٹ بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے، اور اسی پریسیپیٹیشن یا بارش کو دیکھ کے ہم فلڈ کی فورکاسٹ دیتے ہیں، تو وہ بھی کافی حد تک امپرومنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا بھی ہوگا کہ جی ہم دریاؤں میں جتنا بھی پانی آتا ہے اس کا پہلے بتا دیتے ہیں، تو باقی وہ ایکوریٹ ہوتا ہے کہ جی کبھی 10-15 ہزار کیوسک اوپر نیچے ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی پانی جب اپنا والیوم زیادہ بنا لیتا ہے تو کچھ پانی واپس آتا ہے اور کچھ اپنے ٹریک پہ فلو کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کافی حد تک امپرومنٹ اس میں ہے، اور فردر بھی ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بارش کے حوالے سے بتائیے۔ اب میں آپ کو بارش کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جی بارش ابھی تک تو جو سچویشن بنی ہوئی ہے، پہلے اسموگ تھی، اب وہ فاگ میں کنورٹ ہوئی ہے، اور کافی ایریا پہ ہے،
पूरा पंजाब है, बल्कि सिंध का भी कुछ इलाका है, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा का भी। तो ये काफ़ी एरिया पे एक हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है, तकरीबन बांग्लादेश तक एक सिलसिला चल रहा है। तो अब जो फोरकास्ट है ये है कि अब इतने बड़े सिस्टम हाई प्रेशर एरिया को थोड़ा सा डिसिपेट करने के लिए तो धूप या इस किस्म का होना चाहिए, जो कि अभी तक हमें नहीं लग रही कि हफ्ता डेढ़ ये मज़ीद हफ्ता डेढ़ बारिश के चांसेस नहीं है कि जी कोई ऐसी बारिश पाकिस्तान में सर। पाकिस्तान में जो ये सर मसनूई में होता है, थोड़ा सा कोई वेस्टर्ली वेव गुजर जाए तो वहाँ पे ये हमारे जो है एक्सट्रीम नॉर्थ के इलाके हैं, वहाँ पे कुछ स्नोफॉल या बाकी अभी बारिश मसनूई बारिश बरसाई जाती है, इस हवाले से क्या किया है, क्या जिद्दत लाई है महकमा मौसमियात में, ये क्या है एग्जैक्टली सर? देखें, मसनूई बारिश है कि जी आपके पास अगर बादल हैं तो आप उनको बारिश में कन्वर्ट कर सकते हैं कि उसमें कोई ऐसा उसमें मटेरियल डाला जाता है, यानी आप कह लें कि जी सोडियम क्लोराइड गर्मियों में या पोटाशियम आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड का मटेरियल जो है उसका स्प्रे किया जाता है, या ड्राई आइस जो होती है सर्दियों में उसका स्प्रे किया जाता है। तो वो क्लाउड्स जो है ना वो इतना अपना वॉल्यूम या इतना उनका बढ़ जाता है कि वो बरसने के काबिल हो जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी मुल्कों में है, लेकिन पाकिस्तान के में भी इसके ये पहली दफ़ा नहीं है। 1953, 54 और 55 में इसके पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट्स यूनेस्को के तावन से कराए गए थे, और 2000 में भी इसके एक्सपेरिमेंट हुए थे, वो भी बड़े कामयाब थे। और इस वक्त भी जो लाहौर में किया गया है क्लाउड सीडिंग या मसनूई बारिश का, आर्टिफिशियल रेन का, तो वो भी फ्रूटफुल साबित हुआ है कि जी बारिश हुई है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में भी अगर कोई सिलसिला ऐसा आया तो हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंशाल्लाह उनको बताएंगे और वो इसको फर्दर करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद अफजाल साहब। ये बताइएगा सर, ये क्या चीज़ है और ये क्या मेजरमेंट करती है? असल में ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं, ये हमारे 2 रडार लगे हैं जापान के ताउन से, एक इस्लामाबाद में और एक कराची में, और इसके अलावा 2 और रडार्स भी लग रहे हैं मुल्तान में और सखर का एरिया वहाँ पे। तो रडार की बड़ी सिग्निफिकेंस होती है नाउ कास्टिंग। नाउ कास्टिंग का मतलब ये होता है कि अगले 1 घंटे में, 2 घंटे में या ज़्यादा 3 घंटे में किस तरह का मौसम होने वाला है। तो यहाँ से हम रडार का डिस्प्ले देख के ट्रैक कर सकते हैं वेदर सिस्टम जो है, बारिशों का सिलसिला वो किस समत से आ रहा है और किस समत को जा रहा है, और उसकी स्पीड कितनी है और कितनी देर में किसी एरिया को ये हिट करेगा। तो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के जो 4 रडार अभी हमें लगेंगे, और इसके अलावा गवादर में, कोयटा में और डी खान में अगले हमारे जो फ्यूचर में जो स्टेप्स होंगे उसमें ये लगाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो रडार है ये कराची के रडार का डिस्प्ले है। ये रडार वही है जो ऊंचा बना हुआ है और वो 450 किलोमीटर लगभग वो कवर करता है, अराउंड एरिया होता है जिसको वो कवर करता है। और उसकी जो अब आप इसमें देख सकते हैं कि बलूचिस्तान और सिंध का जो बॉर्डर है उसके ऊपर कुछ आपको क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं और बारिश हो रही है। जब बारिश हो रही होती है तो उस वक्त ये इको प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज़ जब क्लाउडी होता है और बारिश नहीं होती तो फिर ये इसका इको भी नहीं आता। और हम इसको विंड्स इसमें देख सकते हैं कि विंड्स किस समत में चल रही हैं और बारिश का सिलसिला किस समत में जा रहा है। अभी क्या दिख रहा है, कब तक बारिश मुतवक्के है सर? जी, अभी खुश्क साली चल रही है इस मौसम में, जो कि अनोमलस है इस साल में, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फोर्सिंग्स हैं, लाइक एल नीनियो है और आईओडी है। तो इनकी अप डाउन होने से हमारा जो क्लाइमेट है वो मुतासर होता है। अभी जो है अब आपको पता है कि सर्दियों का मौसम जो है वो तकरीबन पहले नवंबर में स्टार्ट हो जाया करता था, और अभी तक जो है वो उस तरह की सर्दी नहीं पड़ी, और ना ही वो बारिशें हुई हैं, और ना ही स्नोफॉल इतनी रिकॉर्ड हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर फॉरकास्टिंग इरफान विरक साहब, इनसे बातचीत करते हैं। क्या सिस्टम लगा है, कैसे मेजरमेंट होता है? सर बहुत शुक्रिया, कैसे ये मेजरमेंट आप कर लेते हैं, ये क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स है सर? देखें जी, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये हमारी मॉडल ऑब्जर्वेटरी है। इसमें आप देखिए तो ये एक जो है ना वो स्टीवनसन स्क्रीन लगी हुई है। इसमें डिफरेंट किस्म के थर्मामीटर्स लगे होते हैं जिससे हम
कम से कम दर्जा हरारत और जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन का दर्जा हरारत होता है और उस वक्त का जो दर्जा हरारत होता है उसको मैयर कर रहे होते हैं। और ये हमारे जो इधर जितने भी स्टाफ है वो हर घंटे के बाद, हर आधे घंटे के बाद आता है, इसकी रीडिंग्स लेता है और इसको रिपोर्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस भी लगे हुए हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस क्या करते हैं, वो फ़ौरन जो है ना वो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और डिस्प्ले करवा देते हैं हमें। अंदर सिस्टम पड़ा हुआ है हमारा फोरकास्टिंग में, और वहाँ पे हमें जो है ना वो टेम्परेचर्स, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन और इवन जो है ना वो प्रेशर की भी वैल्यूज़ जो है ना वो मिल रही होती हैं। ये आप देख रहे होंगे ऊपर जो है ना लगा हुआ है, ये फ़ैन लगा हुआ है, इसमें जो है ना जैसे ही ये जब घूमता है तो इससे जो है ना वो विंड की स्पीड और विंड की डायरेक्शन जो है ना वो मैयर ये कितना टाइम एग्जैक्ट हमें पहले पता चल जाता है कि फ़लाँ शहर में, फ़लाँ सिटी में शदीद किस्म की तूफ़ानी किस्म की आंधी आ सकती है? देखिए, ये जो आप ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क देख रहे हैं, ये रियल टाइम और मौजूदा जो कंडीशन है वो बता रहा होता है। इससे हमें ये नहीं पता चलता कि आने वाले वक्त में क्या होगा। इसमें आने वाले वक्त के लिए हम कंप्यूटर मॉडल्स होते हैं हमारे पास, उन कंप्यूटर मॉडल्स को रन किया जाता है, वहाँ से हमें आने वाले वक्त की पेशगोई के लिए जो है ना वो हमें आइडियाज़ मिलते हैं। जैसे आप कहते हैं सिंध में या बलूचिस्तान में सैलाब आने वाला है, ये जो करीब तरीन की आबादियां हैं या कच्चे की आबादियां हैं, इतना सतह समंदर ऊपर जा सकता है, ये कैसे आप मैयर करते हैं? देखें, ये पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना फ्रॉम द डे वन इसने जो है ना अपनी फोरकास्टिंग की जो टेक्निक्स हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है। जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी एनहांस हुई है, उसी तरह पीएमडी ने भी जो है ना दुनिया के साथ साथ जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की कोशिश की है। आजकल हम दौरे जदीद में जो है ना जो जदीद मॉडल्स हैं, कंप्यूटर मॉडल्स हैं, एटमॉस्फेरिक मॉडल्स हैं और जो फ्लड फोरकास्टिंग के मॉडल्स हैं वो यूज़ करते हैं, और उन मॉडल्स को रन करके हम जो है ना उससे आउटपुट जनरेट करते हैं, और जिससे हम ये पेशगोई कर सकते हैं कि फ़लाना मॉडल ये कह रहा है, फ़लाना मॉडल ये कह रहा है। उसके बाद हमारी अपनी एक स्किल होती है, और उस स्किल को बरूए कार लाते हुए हम जो है ना अपना डिसीजन मेकिंग एक करते हैं कि इस जगह पे, फ़लानी जगह पे जो है ना आने वाले वक्त में जो है ना कल, परसों, ये 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, इवन हम मंथली फोरकास्ट भी करते हैं। तो वो इन चीज़ों को देख के जो है ना वो हम फिर इसको। सब ये बताइएगा, अभी फिलफौर कोई खुशखबरी है बारिश की? जैसे वायरस और बच्चे और जो बूढ़े हैं या जवान हैं बीमार हो रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, अभी कोई फिलफौर खुशखबरी है सर? देखें, अभी तो इस हफ्ते, रवां हफ्ते में तो कोई ऐसी बारिश के चांसेस नहीं लग रहे, लेकिन जो कमिंग वीक है उसके आगाज़ में ही जो है ना हम देख रहे हैं कि एक वेदर स्पेल जो है ना वो पाकिस्तान में दाखिल होगा, बलूचिस्तान के एरिया में दाखिल होगा। पहले वो बलूचिस्तान के इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों पे, नॉर्थ बलूचिस्तान में बारिश करेगा और बाज़ जगहों पे जो है ना वो स्नोफॉल भी करेगा, और उसके बाद ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है ना होता हुआ ये गुजर जाएगा।